Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Saima Amir, your maths teacher. I welcome you in your mathematics class. Hope you all will be fine. In the previous lecture we did exercise 1.1 till question number 4. Today we are going to start question number 5. Alright students, here is question number 5. This is the only question which can come in the long form. Mostly in this exercise, all the questions from this exercise can come in the short question form. So this is very simple. Given that f of x is equals to x cube minus ax square plus bx plus 1. If f of 2 is equals to minus 3 and f of minus 1 is equals to 0. So first of all, if f of 2 is equals to minus 3 means when you put 2 in the given question, in the given function, so the result will be equal to minus 3. Alright, let's check it. We will put, wherever we find x, we will put, instead of x, we will put 2 here. So what was the question? The question was x cube minus x square plus bx plus 1. So instead of this x, we will put 2. Again minus a. In the question we were having x here, but we will put 2 here, plus 2 again plus 1 which is equals to minus 3 according to the given condition. So इसको हमने minus 3 के equal कर दिया. 2 cube is equals to 8. इसको जब हम solve करते हैं 2 square 4a plus 2b plus 1 is equals to minus 3. Okay, 8 and 1 9 minus 4a plus 2b is equals to minus 3. Okay, now minus 3 will come here and it becomes 12. 9 plus 3 is 12. Alright, जब हम इसको simplify करते हैं, we can see 2 is common here. 2 से divide कर देंगे both sides पर. After simplification, we can get this equation. Alright. Now the other part of this question was other condition, that when you put minus 1 in the given function, you will get 0. So let's check it and we will make it equal to 0. Now in the function we will put minus 1 instead of x. Minus 1 cube according to the question. X cube है तो हम इसकी जगह minus 1 cube लिखेंगे. Minus a minus 1 whole square plus minus 1 plus 1. Okay. Now minus 1 whole cube because odd power होती है तो वो minus जो है वो change नहीं होता, minus remains same. माइनस 1 पर स्क्वायर है तो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये माइनस 1 पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर, और माइनस ए विल बी हियर. नाउ माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ओके, यहाँ बी मिसिंग है, यहाँ पर बी मिसिंग है. इट्स ओके, आप इसको बी कंसीडर करके बी को जब आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस बी आ जाएगा. फाइन. ऑलराइट, इसकी सिंप्लीफिकेशन प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा. माइनस से माइनस बी इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे और उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा और a प्लस बी इज इक्वल, दिस इज इक्वेशन 2. नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर लेंगे. बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन गेट 3a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. 6 को साइड पर कन्वर्ट कर देंगे, 3a इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा और 3 उधर जाके जब डिवाइड होगा तो a इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा. अब a की ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें. इट्स अप टू यू, आप इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं, बट a 2 सिंपल है तो मैंने इसमें पुट की है. a इज इक्वल्स टू 2 आया था तो इसकी जगह जब आप 2 लिखोगे तो 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. तो जब 2 को उस साइड पर कन्वर्ट करेंगे तो b इज इक्वल्स टू माइनस 2. सो दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो गया. ओके, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट्स स्टेटमेंट की फॉर्म में है, तो स्टेटमेंट मैंने यहाँ नहीं लिखी, बट मैं रीड कर देती हूँ स्टेटमेंट क्या है इसकी. अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड. मीन्स के 60 मीटर की हाइट से एक पत्थर को फेंका जाता है ग्राउंड पे. द हाइट एच आफ्टर एक्स सेकेंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय hx is equals to 40 minus 10x square, which is here. hx is equals to 40 minus 10x square. तो वो कह रहे हैं आपने बताना है कि हाइट बतानी है x सेकेंड्स के बाद कितनी होगी.
इसके फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बताया है कि लेट्स सपोज कि x जो है वो 1 सेकेंड है, तो आपने इसी फंक्शन में x की जगह 1 पुट किया, सो दैट इज़ सिंपल 30 मीटर इसकी हाइट आ गई। ठीक है, ऑलराइट। द सेकंड वन इज़ x की जगह आपने 1.5 से पुट कर दिया और उसमें आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है दैट इज़ 17.5। अगेन इसका सी पार्ट है, इसी तरह से x की जगह आपने 1.7 पुट किया और देन यू विल गेट 11.1। ऑलराइट, डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। चलें अब देख लेते हैं इसका जो है लास्ट सेकंड पार्ट जो है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। ग्राउंड पे जो है वो कब कितने टाइम के बाद जो है ये ग्राउंड तक पहुंचेगा। लेट्स सपोज ग्राउंड तक पहुंचने के बाद इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज वी नो दैट कि जब पत्थर ग्राउंड पर फॉल करेगा तब हाइट तो उसकी 0 होनी चाहिए, तो हम कहेंगे एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये आपने खुद लिखना होगा। एच ऑफ एक्स तो हमें गिवन है इन द क्वेश्चन, दैट इज़ 40 माइनस 10x²। हमने यहाँ पुट किया, उसको 0 के इक्वल कर दिया, उससे हमारे पास x² इज इक्वल्स टू 4 आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सो व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट ऑब्वियसली यू विल गेट प्लस एंड माइनस, सो प्लस एंड माइनस 2 रिजल्ट है, बट आपको पता है कि जो आपका टाइम है वो नेगेटिव नहीं होता, तो स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड। Okay students, before starting our next question number 7, I wanted to read these definition like explicit function, इसका अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ये तीनों डेफिनेशंस हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन, जी एक्सप्लिसिट फंक्शन इज़ अ फंक्शन इफ़ y is easily expressed in the term of x, then y is called an explicit function of x। मतलब ये कि आप एज अ वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, मतलब इसको सेपरेट कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। फाइन। अच्छा, अब आ जाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिस कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें आप एक्स या वाई को इंडिपेंडेंटली सेपरेट ना कर सकें। लाइक जिस तरह से आपने यहाँ पर वाई सेपरेट कर दिया, एक्स को अलग सेपरेट कर दिया, ऐसा अगर हो जाए तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। बट ऐसा फंक्शन जिसमें आप एक्स और वाई को सेपरेट ना कर सकें, वो इस तरह से मिक्सअप हुए हुए हों कि वाई एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट ना हो सके, देन दैट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन। लेट्स रीड दिस डेफिनेशन। इफ़ एक्स एंड वाई आर सो मिक्सड अप and y cannot be expressed in the term of independent variable x, then y is called an implicit function of x. It can be written as f of xy is equals to 0, like x square plus xy plus y square is equals to 2। अब आपने करना क्या है कि इसको ट्राई करना है कि इसको y को एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाएं। आपने ट्राई करना है। आई एम श्योर कि यू विल नॉट सक्सीड इन दिस मेकिंग दिस इक्वेशन as explicit function, so that is why this function will be called implicit function। all right, parametric function। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पैरामेट्रिक फंक्शन से ही रिलेटेड है। पैरामेट्रिक फंक्शन वो होता है जिसमें एक्स और वाई के अलावा आप तीसरा वेरिएबल भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। फॉर अ फंक्शन y is equals to f of x, if both x and y are expressed in another variable say t और q की जगह आप थीटा भी कंसीडर कर सकते हैं, आपकी बुक में यहाँ थीटा लिखा हुआ है। सो और q विच इज़ कॉल्ड पैरामीटर ऑफ द गिवन कर्व। जो थर्ड वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं पैरामीटर ऑफ द गिवन कर्व, सच एज x इज़ इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल देखिए, x इज़ इक्वल्स टू 80² y इज़ इक्वल्स टू 280। यहाँ पर आप क्लियरली दे सकते हैं x और y के अलावा t जो है वो थर्ड वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, t इज़ द थर्ड वेरिएबल और इसको हम कहते हैं पैरामीटर ऑफ द गिवन फंक्शन। दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल, x इज़ इक्वल्स टू a cos t, y इज़ इक्वल्स टू a sin t। अगेन यू कैन सी कि दोनों ही इक्वेशंस में t जो है हमारे पास एज अ थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। जब आपके पास फर्स्ट एक्स एंड वाई के अलावा जो है वो थर्ड वेरिएबल आपके पास जब इन्वॉल्व हो जाए इक्वेशन में, दैट इज़ कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, show that x is equals to 8t square, y is equals to 280 as a parabola, y square is equals to
4ax। आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला शो करके दिखानी है, आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं। ऑल राइट, जब भी आपके पास इस तरह की पैरामेट्रिक फंक्शंस में इक्वेशंस आती हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि आपने अपने थर्ड वेरिएबल को, दैट इज़ पैरामीटर ऑफ द इक्वेशन, इसको आपने एलिमिनेट करना होता है। यहाँ पर जो थर्ड वेरिएबल है आप देख सकते हैं यहाँ टी है, दोनों इक्वेशन में थर्ड वेरिएबल टी है। तो ईज़िली टी को एलिमिनेट करने के लिए जिस इक्वेशन में से टी की ईज़िली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ से करेंगे। मैंने इक्वेशन नंबर 2 से की है, दैट इज़ सिंपलर देन क्वेश्चन पार्ट एक्सरसाइज इक्वेशन नंबर 1। सो टी की वैल्यू यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, टी इज इक्वल्स टू वाई ओवर 2a, देन पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर है, टी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज़ वाई ओवर 2a एंड देन स्क्वायर। ऑल राइट, स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद वाई स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, देन x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 4a। जब 4a को उस साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax विच इज़ सेम एज 1 मीन्स कि आपका जो क्वेश्चन में शो करना था दैट इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ऑल राइट, पार्ट सेकेंड में x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, आपकी बुक में यहाँ थीटा लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू b साइन थीटा। फाइन। अच्छा, अब आपके पास ये दोनों इक्वेशंस हैं और आपने इसको रिप्रेजेंट करना है एलिप्स की इक्वेशन में, रिप्रेजेंट अ एलिप्स इक्वेशन। ऑल राइट, देन x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू b साइन थीटा। अब आपने क्योंकि इसको इस फॉर्म में लाना है तो थोड़ा सा आपने अपने माइंड में देखना है कि ये फॉर्म x ओवर a बनाने के लिए मुझे इसकी फर्स्ट इक्वेशन में से क्या करना चाहिए जी, a को मैं x के नीचे ले आऊँगी, डिवाइड कर दूँगी तो x ओवर a फॉर्म आ जाएगी। और इसी तरह से y ओवर b फॉर्म बनाने के लिए मुझे b को डिवाइड कर देना होगा दोनों साइड पर, तो यहाँ आ जाएगा y ओवर b। ऑल राइट, यू कैन सी हियर x ओवर a cos थीटा, y ओवर b sin थीटा। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ऑल राइट, नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशंस। जब आप इनको स्क्वेयरिंग करते हैं और एडिंग करते हैं तो आपके पास ये इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है। अब 1 किस तरह से आता है, बिकॉज आप जब स्क्वेयरिंग करते हैं और ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो इट्स वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, हाइपरबोलिक फंक्शंस, जी जिस तरह से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में लर्न की थी आइडेंटिटीज़, इस तरह से यहाँ पर भी आपको ये लर्न करने पड़ेंगे एज अ फॉर्मूला। हाइपरबोलिक फंक्शंस में y इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x जो है वो किसके इक्वल होता है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। ऑल राइट, और कॉस हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है, एग्जैक्टली सेम यही है, बट इसमें यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, और फर्दर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है साइन हाइपरबोलिक एक्स के फॉर्मूला में और कॉस हाइपरबोलिक एक्स के फॉर्मूला में, जस्ट प्लस और माइनस का डिफरेंस है। देन टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स में आ जाएं, वी नो दैट टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस। सो साइन ओवर कॉस 2 से कैंसिल हो जाएगा जब आप साइन का जगह पर साइन का फॉर्मूला लिखेंगे और कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन की जगह कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग है वो हमारे पास ये रह जाएगा। इसी तरह से कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम ऑपोजिट कर देंगे, कॉस ओवर साइन हाइपरबोलिक कर देंगे। ऑल राइट, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स, सीकेंट भी 1 ओवर कॉस के इक्वल होता है, तो कॉस क्योंकि ई एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2 है तो ये इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट इज़ 2 ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। इसी तरह से हम कोसिकेंट को ले लेंगे। So you have to learn these formulas. All right, for question number 8, you have learned all hyperbolic functions formula. So the first one is show that sine hyperbolic 2x is equals to 2 sine hyperbolic x cos hyperbolic x. All right, हमने यहाँ से right hand side ले ली है, 2 sine hyperbolic x cos hyperbolic x. All right, और just आपने formulas put किए हैं जो अभी आप लोगों ने learn किए हैं, 2 ex minus e raised to power minus x over 2, which is the formula of sine hyperbolic x. Then
ex plus e minus e raised to power minus x over 2, which is the formula of cos hyperbolic x. All right, when you multiply, because one time plus one time minus a square minus b square which is equals to a plus b a minus b फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा. जब आप इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो e रेज टू पावर 2x माइनस e माइनस रेज टू पावर माइनस 2x, और जब 2 का स्क्वायर होगा तो विच इज़ इक्वल्स टू 4. जी यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, 2 की कटिंग कर देंगे. दैट विल बी आर रिज़ल्ट. हैव यू ऑब्जर्व्ड कि जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है ये तो साइन हाइपरबोलिक 2x के इक्वल है. अच्छा, आप कहेंगे ये 2 कहाँ से आ गया. अब आपके माइंड में होना चाहिए जो हमारे पास ये x रिप्रेजेंट करता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर x की जगह 2x था तो हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड में एंगल की जगह 2x हमने यहाँ पर लिख दिया. फाइन. और इसी तरह के इसके रिमेनिंग जो हैं, आपने ये सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स को भी इसी तरह से सॉल्व करना है और उन्हीं फार्मूलाज से जो अभी हम लोगों ने जो हमने अभी प्रीवियसली किए हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ इवन एंड ऑड फंक्शन. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो इनसे रिलेटेड है. इवन फंक्शन क्या होता है. इवन फंक्शन होता है ऐसा फंक्शन जिसमें आप डोमेन को नेगेटिव पुट करें तो उस पर कोई असर ना हो और ओरिजिनल जो फंक्शन है वो एज इट इज़ रहे. मीन्स कि अ फंक्शन f इज़ सेड टू बी एन इवन इफ़ f इंटू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. मीन्स कि डोमेन को माइनस नेगेटिव पुट करने के बावजूद आपके फंक्शन पर कोई असर ना हो, वो पॉजिटिव ही रहे या वो एज इट इज़ रहे जैसा वो था, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन फॉर एवरी नंबर एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ. जी उसके लिए एग्जाम्पल देख लें. एक एग्जाम्पल मैं यहाँ से आपको करवा देती हूँ. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ऑलराइट, आपने एक्स की जगह रिप्लेस किया माइनस एक्स. अपने फंक्शन में आपने x की जगह रिप्लेस किया माइनस एक्स. यहाँ x था, हमने माइनस एक्स पुट किया. आपने देखा स्क्वायर ने इसको पॉजिटिव कर दिया और फंक्शन एज इट इज़ रहा विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल फॉर्म में. तो फंक्शन पर कोई असर नहीं हुआ. इसका मतलब है कि दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड इवन फंक्शन. लेट्स मूव टू ऑड फंक्शन. अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन ऑड if f of minus x is equals to minus f of x. अच्छा, ऑड फंक्शंस के लिए देखें, जब आप उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो, अपनी वैल्यूज़ को x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो फिर क्या होता है, माइनस जो है वो कॉमन लेके और रिमेनिंग फंक्शन जो है वो एज इट इज़ रह जाए. मतलब नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन. नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन. आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट कि जब आप नेगेटिव को एक्स को रिप्लेस कर दें नेगेटिव एक्स से तो आपका जो फंक्शन है वो नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑड फंक्शन फॉर एवरी नंबर ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ. ऑलराइट, फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स आर ऑड फंक्शन. ओके, इस एग्जांपल को देखें. साइन एक्स, यहाँ पर हम x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया. अगेन साइन एज इट इज़ x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया. आपको पता है साइन ऑड फंक्शन है तो इस माइनस को हम आउट कर देंगे. माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो गया, माइनस बाहर आ गया. और साइन एक्स क्योंकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन था तो उसको हमने इस तरह से लिखा जा सकता है विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑड फंक्शन. ऑलराइट, इवन एंड ऑड फंक्शन की डेफिनेशंस को माइंड में रखते हुए स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. उन्हीं इक्वेशंस को हमने जहन में रखना होगा. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस एक्स. इसमें आपने बताना होगा कि वेदर द फंक्शन इज़ इवन और ऑड. रिप्लेस कर देंगे एक्स बाय माइनस एक्स, एफ इंटू माइनस एक्स होल क्यूब. इस फंक्शन में हमने जहाँ हमें एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पर हमने माइनस एक्स पुट कर दिया. ऑलराइट, बाय सॉल्विंग ऑल दिस वी कैन सी कि इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया. minus into original function which is the example of odd function. So this is clearly this is odd function क्योंकि आपके पास जो function है वो negative of the original function आ गया. फाइन. इसी का सेकंड पार्ट देखिएगा. f of x is equals to x plus 2 whole square.
अगेन इसमें हम रिप्लेस कर रहे हैं x बाय माइनस एक्स, जहाँ हमें x नज़र आएगा हमने वहाँ पर माइनस एक्स पुट कर दिया। फाइन, माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। क्लियरली हम ये देख रहे हैं कि जब आप इसका स्क्वायर ओपन करते हो तो ये किसी सूरत में भी अपने ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल नहीं आ सकेगा, ना ही प्लस में और ना ही माइनस में। सो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं नीदर इवन नॉर ऑड। तो इस तरह की कंडीशंस भी हमें बहुत सी मिलेंगी कि फंक्शन जो है ना ही ऑड होगा और ना ही इवन होगा। और राइट, एक और क्वेश्चन इसमें मैंने किया है जो इवन फंक्शन की एग्जांपल है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6, रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, अगेन एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से। और राइट, अब आप सोच रहे होंगे 2/3 पावर कैसे ली जाए, तो इट्स वेरी सिंपल, हम स्क्वायर को यहाँ लिख देते हैं और 1/3 को यहाँ बाहर कर देते हैं। ठीक है, वन बेस हैविंग टू पावर्स बोथ विल मल्टीप्लाई, दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन इस तरह से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। माइनस एक्स रेज टू पावर 2 मतलब स्क्वायर है आपके पास, स्क्वायर जब इस पर अप्लाई होगा तो इसका नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। नेगेटिव ख़त्म होने के बाद आपने इसमें जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल हमारे पास होती हैं प्रॉपर्टीज़ वो अप्लाई कर देंगे। अगेन दो बेसे दो पावर्स हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट विल बी इक्वल टू 2/3 प्लस 6। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द ओरिजिनल फंक्शन, तो अपने ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल हो गई। तो हमने क्या सीखा कि हमने जब आप किसी फंक्शन को रिप्लेस कर देते हैं उसके नेगेटिव एक्स के साथ और वो एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई चेंज नहीं होता, then it is called even function. So f of x is an even function. Okay students, practice करनी है आपने इस एक्सरसाइज की। We have completed our exercise 1.1. Inshallah in the next lecture we will start exercise 1.2. Till then आपने इनकी एग्जाम्पल्स की, डेफिनेशंस की और क्वेश्चंस की प्रॉपर आपने प्रैक्टिस करनी है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।